Hello class, good evening. So last in the previous video it was my introduction and it was my first video. कल मेरा पहला वीडियो था जहाँ मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था जो आज मैं आप लोगों का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करूँगी दैट इज़ ऑफ क्लास 11th ओके and the class 11th from CBSE board. So today I am starting with CBSE board class 11th and the book is Indian Economic Development. Okay, from Indian Economic Development I am taking the unit 1 chapter 1. From the unit 1 this chapter is Indian economy on the eve of independence. हमारे जब हमारा देश स्वतंत्र हो रहा था उससे पहले हमारी इकोनॉमी कैसी थी देश की. ओके हमारा अर्थव्यवस्था कैसा था. हाउ वॉज आवर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग दैट एज यू आर इन 11th स्टैंडर्ड सो मैनी दो स्टूडेंट्स हु हैव टेकन कॉमर्स स्ट्रीम उनके लिए इकोनॉमिक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट. थोड़ा बहुत आप लोगों ने एसएसटी में एज अ पार्ट ऑफ सोशल साइंस you must have learnt the chapters of economics. Economics was a part of social science also. Economics, political science, then you have your history and your geography, history, civics, then geography. Now civics has been turned into political science because from class 6 after some new rules in the NCERT, new rules NCERT में आने के बाद civics को political science ही बोला जाता है. Otherwise we used to study political science from 9th standard, but now civics has turned into political science from class 6. So little bit of economics you must have studied in your social studies in classes 9th and 10th, but in a detailed version you will study in your 11th standard. So before starting your first chapter I would like to know, मैं जानना चाहती हूँ how many of you know the meaning of economics. So economics, so this is the study of condition. This is a study of condition where we relate to the financial, social conditions of an country. Of a country, but it is not always related to money. मतलब कि इकोनॉमिक्स का दिस इज डेफिनेशन गिवन बाय मी, ये मेरा खुद का डेफिनेशन है. सो द स्टडी ऑफ कंडीशन वेयर वी रिलेट टू द फाइनेंशियल सोशल कंडीशंस ऑफ ए कंट्री मीन्स हाउ वी आर रिलेटिंग टूवर्ड्स द सोसाइटी. हमारा इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स जो स्टडी है हमारा पढ़ने का दैट इज नोन एज अर्थशास्त्र इन हिंदी. अर्थशास्त्र क्या बोला जाता है हिंदी में? अर्थशास्त्र. ओके तो जैसा कि आप लोगों ने देखा जो अर्थशास्त्र बोला जाता है इकोनॉमिक्स को, अर्थव्यवस्था यानी कि हमारे पास जितना सोर्सेस है, जितना कुछ है उसके हिसाब से हम किस तरीके से चल रहे हैं, हम अपने आप को किस तरीके से चला रहे हैं, कितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, कितनी हमारी इनकम है, मंथली इनकम के हिसाब से हम किस तरीके से अपने आप को शो करते हैं. तो नेक्स्ट इज दैट I will give one definition more, that is you have many definitions of economics. Okay, so many definitions of economics is there. So some of the definitions I will explain to you towards here, and some economics you can search from your books also. In books there are many
you can say many people have given, many economists have given, many type of also been derived from any टाइप ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि किसी ना किसी लैंग्वेज से, किसी ना किसी भाषा से हमारे उस वर्ड को लिया गया है, धारण किया गया है. इन इंग्लिश वी से डेरिवेशन. सो योर इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि ये ग्रीस से आया है. योर इकोनॉमिक्स इज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. द वर्ड नेम इज oikonomikos. What is the name? Oikonomikos. I am writing the spelling here. Oikonomikos. Oikonomikos. Okay. The meaning is, name is Oikonomikos. Now अब इसका मतलब क्या है, ये वर्ड से कैसे निकला ये वर्ड. ओके, सो इको जो इंग्लिश का वर्ड डिराइव किया गया है, दैट इज टेकन फ्रॉम ओइकोस. ओके, ओइकोस एंड नोमो सॉरी, योर नोमे हैज टेकन फ्रॉम नोमिकोस. Nomikos. Now, what is the exact English meaning of that? Eco, it is home. Oikos means home. Nomos means management. Management. So, eco means home and nomos means management. होम मैनेजमेंट, इट इज़ ऑल्सो नोन एज होम मैनेजमेंट. ओके, अब होम मैनेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम घर पे अपना इकोनॉमी को कैसे चला रहे हैं, अपना घर का अर्थव्यवस्था हमारा कैसा है, अकॉर्डिंग टू, ऑब्वियसली इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंशियल कंडीशन. आपके घर में आपके फादर की जैसी इनकम होगी, या आपके फादर एंड मदर बोथ आर वर्किंग, देन इट विल बी अकॉर्डिंग टू देम. Then they will divide their finances also. Obviously आपके मदर एंड फादर आपस में अपना फाइनेंस को डिवाइड कर देंगे. सम ऑफ द होम द एक्सपेंसेस, जो डेली एक्सपेंसेस है, मान लीजिए वो डेली एक्सपेंसेस एंड द बिल्स लाइक योर इलेक्ट्रिसिटी बिल and your water bill or any type of you can say your Wi-Fi. As you all know, everybody is using Wi-Fi nowadays because internet is the basic and the most important part of our lives. हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट है. आज इंटरनेट है तो आज यूट्यूब पे भी मैं आप लोगों को अपना नॉलेज प्रेजेंट कर पा रही हूँ. सो all the things are managed by father. And what is mother doing? For example, your mother is managing your expenses. मतलब आप as a student, she is paying your school fees, she is paying your transport fees, the way you are coming, your uniform, your books, notebooks, your stationery items, जितना भी आपका ज़रूरी है वो सारा your mother is paying. This is the way you are consuming goods and services. Consumption of goods and services is also known as economics. Okay, your father is spending money on those items which are monthly, and your mother is also spending monthly of yours, and side by side she is also maintaining your, you can say, the way of living or your luxury. Like आप लोग कहीं घूमने गए या फिर आप लोगों ने कुछ ड्रेसेस खरीदे, ये जो हम लोग अपने शौक के लिए जो चीज़ें करते हैं, दैट कम्स अंडर द लग्जरी आइटम्स. ओके, योर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक टेलीविजन, फोन, लैपटॉप्स, these all items. If your parents both are working, they divide between themselves. If your single person is working, like your father is working, then what is he doing? He is managing वो अपना इनकम के हिसाब से, वो अपना जो आप उनका इनकम है, जितना वो पैसे कमाते हैं मंथली, अपनी तनख्वाह के हिसाब से वो पैसे खर्च करते हैं. एंड
गुड्स कंज्यूम करते हैं, प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं, उसी हिसाब से। एंड जो मदर हाउस होम वीकर है, वी डोंट कॉल हाउस वाइफ नाउडेज। हम जिनके पेरेंट्स मदर्स वर्किंग नहीं होते, वी डोंट कॉल हाउस वाइफ्स, वी कॉल देम होम मेकर्स। सो जितने भी होम मेकर्स हैं वो क्या कर रही हैं? आर दे सिटिंग आइडल एट होम? नो, वो घर पे आइडल नहीं बैठी हैं। वो क्या कर रही हैं? द एक्सपेंसेस विच योर फादर इज स्पेंडिंग, दे आर मैनेजिंग दैट। वो मैनेज कर रही है, मैनेज करके स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज, अगर कभी स्कैसिटी हो जाती है, जितना आइटम है हमारे पास उतने में हम अपने नीड्स को फुलफिल करते हैं। ओके, हमारा फुलफिलमेंट उसी तरीके से होता है। ओके, सो दिस इज proper economics which I told you, home management. In our home also we are doing our economics, और हमारे each and every country has also has its economic condition. How it is measured, हमारा जो देश की कमाई हो रही है उसको हम किस तरीके से मेजर करते हैं? by GDP, that is gross domestic product. Okay, we measure it through gross domestic product. And one more thing is there, PCI, that is per capita income. यानी कि पर कैपिटा इनकम मतलब हर एक पर्सनल इंडिविजुअल का इनकम ले रहे। नो, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स दे आर लुकिंग एट द per capita income. In our India, you know, we have 28 states and 7 union territories. So सबका अपना अपना GDP भी है। अब सबका अपना अपना GDP होगा, अपना इकोनॉमिक कंडीशन है, वो स्टेट किस तरीके से चल रहा है, कितने लोग वहाँ पे एम्प्लॉयड है, मतलब कितने लोगों को काम मिल रहा है और कितने लोग अनएम्प्लॉयड है, हाउ मेनी पीपल आर देयर हु आर नॉट वर्किंग, यानी कि कितने लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोज़गार हैं, जिनको काम नहीं मिला है, और कितने लोग हैं जिनको एम्प्लॉयड हैं। उस हिसाब से भी आपका GDP को मेजर किया जाता है। GDP मेजर करने के लिए फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू पर कैपिटा इनकम, वो आगे आने वाले टॉपिक्स में हम लोग कराएंगे। ओके, ओके, सो नाउ लेट्स टर्न टुवर्ड्स टॉपिक। जिनके पास बुक्स हैं वो अपना ये फर्स्ट चैप्टर ओपन कर ले, दैट इज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, सो अब हमारा इंडिपेंडेंस के टाइम, ऑब्वियस सी बात है, आज जो हमारा इकोनॉमी है, द प्रेजेंट डे इकोनॉमी, सो द प्रेजेंट डे इकोनॉमी, हमारा जो प्रेजेंट डे इकोनॉमी है वो आज के टाइम से नहीं बना है। ओके, जो आज का इकोनॉमी है, इट इज़ नॉट एट ऑल ओनली दैट इट इज़ रिलेटेड टूवर्ड्स द प्रेजेंट सिचुएशन, इट हैज़ अ डीप रूट्स। अब इसके पुराने अगर पास्ट देखें तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? व्हेन द ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, व्हेन ब्रिटिशर्स इन्वेडेड इंडिया, they ruled over 2 centuries, एटलीस्ट 200 साल से ज़्यादा उन लोगों ने हमारे ऊपर रूल किया। एंड जो उस टाइम पे वो लोग क्या सोचते थे, दैट हमारा जो इकोनॉमी है उनका हमारा कुछ भी प्रोग्रेस नहीं होगा। हमारे इंडिया में बहुत सारे, इट्स वेरी रिच इन एग्रीकल्चर एंड बहुत सारे क्रॉप्स यहाँ ग्रो होते थे। तो उस टाइम पे उन्होंने ये सोचा, जो जितना भी रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारे इंडिया से कहाँ जा रहा है? ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन में जा रहा है। ग्रेट ब्रिटेन, इंडिया से ग्रेट ब्रिटेन में जाएगा और वहाँ पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज फॉर्म होंगी। एंड दे, उन्होंने यही उनका मेंटलिटी थी, जेट यहाँ से जितना भी रॉ मटेरियल्स है वो इट विल बी पास ऑन टू दैट कंट्री एंड अपने देश में ले जाएंगे। एंड देन दे विल, व्हाट दे विल डू, देन दे विल
you know that use that in their industries. फिर वो finished goods, obviously raw material एक item, जैसे कि आप लोग देखते हैं हम लोग बुक्स यूज़ कर रहे हैं, ओके, बुक्स यूज़ कर रहे हैं, so any type of books you are using, or this pen I am having, the ink has come from somewhere, obviously the ink which we are using, or the blue ink which we are using, and that is वर्टिगो, नोन एज वर्टिगो प्लांट। तो वो रॉ मटेरियल था, वो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उसको अपने देश में ले जा रहे थे, इतना ज़्यादा हो गया था दैट वन टाइम केम इट वॉज अनेबल टू ग्रो दैट क्रॉप्स। हमारे फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ग्रो करने के। और इंडिया का, तब इंडिया इज़ नोन एज एग्रीकल्चर कंट्री। सबसे ज़्यादा अगर हमारा इकोनॉमिकली देखा जाए, सो इंडिया का इनकम कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से। मोस्ट पार्ट ऑफ आवर इंडिया इज एग्रीकल्चर। हमारा भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा पार्ट हमारा रॉ मटेरियल से इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है, आयात निर्यात। हमारा बहुत सारा रॉ मटेरियल आज भी, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बोला था, जो हमारा प्रेजेंट डे इकोनॉमी है वो हमारा पास्ट से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। सो हमारा बहुत सारा जो रॉ मटेरियल्स है, जो हमको रॉ मटेरियल्स मिलता है हमारे एग्रीकल्चर से, दैट इज इम्पोर्टेड टूवर्ड्स, you know, exported towards your other countries, and it some parts, some things also come from the other countries, but जो दूसरे countries से हमारे यहाँ आता है imported, that things are, you can say, those items are ready made, but raw materials from India, most of the things of raw materials are being passed towards the other countries, okay. So what that Britishers have thought that ये लोग मॉडर्न इंडस्ट्रीज फॉर्म कर लेंगे एंड हमारे देश के लिए फिर वो कुछ नहीं बचेगा, एंड आर इकोनॉमिक कंडीशन विल वेरी बी पुअर। बट आफ्टर 7.5 decades, यानी कि इंडिया के मोर देन 75 years इंडिपेंडेंस होने के बाद, we are growing and we are still a developing country, and we are sure that we will one day be known as a developed country. तो हम लोग अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। डेवलपिंग स्टेज यानी कि आप एक बकेट लीजिए, पानी भरे, पानी हमारा भर रहा है, बट इट इज़ नॉट फुलफिल्ड, वो पूरा नहीं भरा है अभी तक। सो इंडिया इज डेवलपिंग, बट इट नीड्स टू बी डेवलप्ड, ओके। डेवलपमेंट under the colonial rule. So you know the meaning of colonial rule. The British rule, the timing period of British rule was also known as colonial rule. Okay, so your next topic is low level of economic development under the colonial rule. तो हमारा जो इंडियन इकोनॉमी था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉलोनियल रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर हमारे इंडियन इकोनॉमी का लेवल बहुत लो था। वाई? बिकॉज जैसा मैंने आपको पहले बताया, ऑल द रॉ मटेरियल्स वर मैन्युफैक्चर्ड टुवर्ड्स देयर ओन कंट्री फॉर देयर मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस एंड देयर डेवलपमेंट, देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन देयर ओन कंट्री। But in our country there was nothing, any type of income over here. That's why आने वाले टाइम में आपने सुना होगा बंगाल फेमाइन, यानी कि भूखमरी हो गई थी। बिकॉज एक टाइम पे इतना ड्राई सीजन आया जब बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई, ऑल द क्रॉप्स वर डेड, एंड ड्यूरिंग द टाइम दैट टाइम इन बंगाल द पीपल वर डाइंग ऑफ हंगर, दे वर स्टार्विंग, यू नो, दे वर स्टार्विंग ऑफ हंगर। सो यही मैंने अभी आपको बताया, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन आवर ओन कंट्री। सो बिफोर इंडिया हैड एन इंडियन इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल आने से पहले आपका इंडियन इकोनॉमी जो उसका बहुत उसकी इंडिपेंडेंस थी, ठीक है।
बट उस टाइम पे क्या था, मोनार्की था। मोनार्की मीन्स यू ऑल नो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं था। वी हैड प्रिंसली स्टेट्स। हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स है, स्टेट्स के अकॉर्डिंग वी हैड रूलर्स, किंगडम्स, राज्य थे जहाँ राजा लोग राज करते थे इन अ पर्टिकुलर एरिया। सो उस एरिया में आप लोग का इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसली स्टेट। जिस जिस देश में, जिस जिस स्टेट में राजा लोग राज कर रहे थे, उनकी खुद की इकोनॉमी थी, खुद का मनी था, खुद का करेंसी था, अपना अपना था सब कुछ। बट आफ्टर कमिंग ऑफ द कॉलोनियल रूल, आवर इकोनॉमिक लेवल गॉट वेरी डाउन। हमारा इकोनॉमिक लेवल है जो कि बहुत नीचे जा चुका था। बट सबको पता है, एज यू ऑल नो, दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सबको पता है एग्रीकल्चर वॉज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा सबसे ज्यादा इनकम एग्रीकल्चर इनकम से आता है आज भी। उस टाइम पे और कुछ नहीं था देश में, only agriculture was the important part of the livelihood of their people. Okay, yet the Indian's economy was, agriculture was the most important source of livelihood for most of the people. Yet the country's economy was characterized by various manufacturing activities. यानी कि बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज भी हुआ करती थी, बिकॉज इंडिया हैज अ लिस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन। बहुत सारे इंडिया में क्राफ्ट्समैन हैं। ओके, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दैट एग्रीकल्चर वाज द मेन पार्ट ऑफ आवर इनकम और यू नो लाइवलीहुड ऑफ द पीपल। बट उसके बाद भी वी हैड मैनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैसे हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज लाइक यू नो, और इंडिया हैज अ लिस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन। हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम, हाथ से बना हुआ आइटम बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया से यू नो यू कैन से एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स। तो सबसे ज़्यादा आइटम्स वी हैड फ्रॉम आवर क्लॉथ। ओके, सो अब आप लोग अपने बुक में देखिए। Now I am reading. India has an independent economy before the advent of the British rule. Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly known for handicraft industries in the field of cotton and silk textile. ठीक है, मैंने भाई आपको बताया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत थी, हाथों से बनाया हुआ काम आज भी होता है। जो हम लोग सिल्क की साड़ी पहनते हैं, द प्योर सिल्क हैज बीन यू नो द प्योर सिल्क कम्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम सिल्क वॉर्म। एक इंसेक्ट है, सबको पता है। सिल्क वॉर्म से सिल्क का कपड़े को धीरे धीरे बनाया जाता है एंड इट इज टेकन टू एन इंडस्ट्री। And how in most of the part of, mostly in Bengal, you have seen women wear cotton sarees also. That is in Bengali it's known as tat, and in Hindi we call it tantuj. The tat is also made from a wooden machine which is still being used. उसमें कोई modernization नहीं हुआ है, कोई भी नए गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है। वो पुराने तरीके से ही उसको वुडन मशीन से तात की साड़ी यानी कि कॉटन से बनाया जाता है। तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क बहुत हो रहा था। एक और काम जहाँ की सिल्क और कॉटन के टेक्सटाइल्स थे। ओके, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा। हाँ, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल वर्क ऑल्सो। मेटल का भी बहुत सारा वर्क हमारे इंडिया में होता है। बहुत सारे
चीज़ें, फर्नीचर से लेके यू कैन से थिंग्स विच आर यूज टुडे इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑल्सो मेटल, like this is the phone. Metal is been used here. The part, this part is metal. Okay. Now one more thing is that precious stones. In India, women are traditionally also not fond of गहने पहनने का, हम सबको शौक है. And the precious stones, diamond, हीरा, डायमंड, द डायमंड का भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है फ्रॉम भोपाल. भोपाल में एक फॉरेस्ट रिजर्व है, एक जंगल है जहाँ पे पूरा डायमंड का माइनिंग किया जाता है. तो प्रेशियस स्टोन्स को जब से माइनिंग करने से नहीं होगा, तब जो डायमंड का जो बड़ा स्टोन निकल के बाहर आता है, जो पत्थर होता है प्रेशियस, तो सुंदर स्टोन होता है उसका, उसमें से कार्विंग यानी कि कारीगरी की जाती है. क्राफ्ट्समैन जो है उस पर सुंदर तरीके से वर्क करते हैं टू टर्न इनटू रिंग, necklaces, pendants, lockets, earrings, okay, bracelets. It is used in that way. Now next, these products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used. हाँ, हमारे इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल्स है, चाहे आप इधर भी देख लीजिए, सिल्क, कॉटन, स्टोन्स, मेटल्स, each and every has fine quality. The quality is very good, okay, because it is produced over here. हमारे देश में ही produced होता है. Worldwide market based on the reputation of the fine quality of materials used and the high standards of craftsmanship seen in the imports from India. High quality of craftsmanship होता है, okay. Okay, so as I told you about handicraft industries in India, हमारी जितनी भी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, उन्हीं के वजह से आज हमारा धीरे धीरे इकोनॉमी, इतने लो लेवल होने के बाद भी धीरे धीरे इकोनॉमी ग्रो होने लगा. उस टाइम पर भी आप देख रहे हो, दैट इज, ये हमारा एंशिएंट तरीका है इकोनॉमी को बढ़ाने का. और ये हमारा इंडस्ट्री, जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी, एक्टिविटीज़ होती थी, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ में थी. तब हमारी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, बट वी हैड हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ एंड ऑल द प्योर एंड फाइन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स वॉज बीन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. ओके, जितना भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें हमारा प्योर प्रोडक्ट्स यूज़ किया जाता था. नाउ नेक्स्ट यू कैन सी in the book, it is given box, there is a box with a grey color और उसमें हेडिंग दिया हुआ है टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात मैंने अभी आपसे की भी थी. सो वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल. और सबसे ज्यादा बंगाल से क्या जाता है? जूट. जूट के बैग्स देखे होंगे आपने. Now see, textile industry in Bengal. Muslin is a type of, आप रीड करिए उसमें, muslin is a type of cotton textile which has its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka. Dhaka यानी कि pre-independence Bangladesh was part of India. सबको पता है. ढाका is the capital and वो बंगाल का बॉर्डर से अटैच्ड है. And it was a part. So Dhaka में भी आज, Dhaka right now at present Bangladesh 80% of economy is coming from textiles, from the clothes, you know, जितना भी clothes का manufacturing, जितना भी fabric है, it is coming from Bangladesh. So textile industry in Bengal, उसमें देखिए muslin is a type of cotton textile which has its origin in Bengal. ये आपका मसलिन क्लॉथ है. यू कैन सी दिस इज मसलिन क्लॉथ. अब इस मसलिन क्लॉथ को मलमल भी बोला जाता है. अभी हम इस सी बॉक्स में ही पढ़ेंगे. मसलिन क्लॉथ को मलमल बोला जाता है. सी इट इज सो फाइन एंड थिन. ओके, एंड यू नो आई एम लिविंग इन बंगाल, सो यू कैन फाइंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फैब्रिक ओवर हियर. अभी आप कहोगे ये आप मैम ये क्या यूज कर रहे हैं, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग दिस गुड एज.
इस गुड्स का कंजम्पशन कैसे हो रहा है मेरे पास. सो दिस इज यूज्ड इन कुकिंग एंड वेयर कर्ड, यू नो, दही को जब हम स्क्वीज करते हैं एज अ हंग कर्ड, तो हम उसको स्क्वीज करने के लिए इसको यूज करते हैं. और यू कैन से फिल्टराइजेशन ऑफ यू नो फ्रॉम द मिल्क में से हमको जब कॉटेज चीज यानी कि पनीर बनाना होता है तब हम इसका इस क्लॉथ का यूज करते हैं. सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग इसका तब भी इंडिपेंडेंस से पहले भी और आज भी बांग्लादेश में होता है. मसलिन क्लॉथ, दिस इज मसलिन क्लॉथ एंड दिस इज ओनली, यू कैन सी दिस व्हाइट कलर क्लॉथ. ओके, so read in the box what is it is written, that muslin is a type of cotton textile which has its origin in Bengal, particularly places in and around Dhaka, spelled during the pre-independence period as Dhaka. पहले ढाका नहीं बोला जाता था. Now it's a capital city of Bangladesh. Dhaka muslin has gained worldwide fame as an exquisite type of cotton textile. ये एक टाइप का कॉटन टेक्सटाइल है. इसका वर्ल्ड फेमस, इट हैज बिकम फेमस नाउ, इट हैज गेन फेम. इसने फेम गेन कर लिया है, नाम हो गया इसका. ओके, द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ मसलिन वॉज कॉल्ड मलमल, जो मैंने अभी आपको दिखाया, यूज कर रही हूँ. Sometimes foreign travelers also used to refer it as मलमल शाही. फॉरेन ट्रैवलर्स जो बाहर से आते थे वो उसको मलमल शाही और मलमल खस, implying that it was worn by or fit by the royalty. मतलब रॉयल लोग यानी कि राजघराने के लोग, जो those people who belong from the kingdoms, only they used to have this cloth. मतलब मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के पास ये सब नहीं था. ओके, सो next is the economic policies pursued by the colonial government in India were concerned more with the protection and promotion of economic interest of their own country, home country, than with the development of the Indian economy. Such policies brought about a fundamental change in the structure of the Indian, transforming the country into supplier of raw materials and consumer of finished industrial products from Britain. मैंने आपको पहले ये समझाया था, यहाँ से रॉ मटेरियल सारा उनके देश में जाता था और वो लोग अपने ही देश के इकोनॉमी के लिए कंसर्न थे, चिंतित थे, उनको प्रॉब्लम थी, बट दे वर नॉट कंसर्न अबाउट इंडियाज इकोनॉमी. सिर्फ इंडिया से उनका प्रोडक्ट जाता था बट वो इंडियन इकोनॉमी के लिए बिल्कुल भी कंसर्न नहीं थे. उन्हें कोई मतलब नहीं था दैट इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है या उसका लेवल अप हो रहा है या डाउन हो रहा है. बट आज भी उस टाइम से एक चीज़ अभी भी फॉलो की जाती है, द मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल्स आर बीन यूज्ड बाय इंडिया. और जो मैंने आपको पहले बताया, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है, द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स इज imported from Great Britain. Not only Great Britain, nowadays many countries we get the finished products. मतलब प्रोडक्ट कंप्लीट होके हमारे देश में आता है. ओके, so obviously the colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and per capita income. इंडिया की per capita income जो मैंने आपको बताया था इससे पहले, वो मैं आपको समझाऊंगी. Some individual attempts which were made to measure some incomes yielded conflicting, inconsistent results. Among the notable estimates, अब हमारे इसमें कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिनका आप नाम पढ़ेंगे: दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिनले श्रेयस, V.K.R.V. Rao and R.C. Desai. It was Rao whose estimates during the colonial product was considered very significant. However, most studies did find that country's growth of aggregate real output during the first half of the 20th century was less than 2%, coupled with a mere 0.5% growth in per capita output each year. तो ये टॉपिक मैं अभी यहीं आपको फिनिश करती हूँ. अब एग्रीकल्चर सेक्टर से हम कल पढ़ेंगे, जहाँ की मिस्टर राव ने ये प्रेडिक्शन किया था दैट, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मिस्टर राव ने ये प्रेडिक्शन किया था दैट आवर कंट्रीज ओनली 2%
they are spreading all over, but still we are not consuming the output in the way. Okay, so thank you for today. Hope you like my teaching. So if you like this video, then please like, share and subscribe to this channel. And next topic, I mean from this first chapter only, next topic I will post tomorrow. So today it ends over here. Thank you for today. Have a nice day. Bye. जैसा कि अभी मैंने आपको बताया दैट एग्रीकल्चर वाज द मेन पार्ट ऑफ आवर इनकम और लाइवलीहुड ऑफ द पीपल, बट उसके बाद भी वी हैड मैनी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज. अब मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज कैसे हो रहा है? तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज लाइक और इंडिया हैज अ लिस्ट ऑफ क्राफ्ट्समैन. हैंडीक्राफ्ट्स का आइटम, हाथ से बना हुआ आइटम बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया से यू कैन से एक्सपोर्ट होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स. तो सबसे ज़्यादा आइटम्स वी हैड फ्रॉम आवर क्लॉथ. ओके, सो अब आप लोग अपने बुक में देखिए. Now I am reading. India has an independent economy before the advent of the British rule. Though agriculture was the main source of livelihood for most people, yet the country's economy was characterized by various kinds of manufacturing activities. India was particularly known for handicraft industries in the field of cotton and silk textile. ठीक है, मैंने भाई आपको बताया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बहुत ही हाथों से बनाया हुआ काम आज भी होता है. जो हम लोग सिल्क की साड़ी पहनते हैं, द प्योर सिल्क हैज बीन द प्योर सिल्क कम्स फ्रॉम वेयर? फ्रॉम सिल्क वॉर्म. एक इंसेक्ट है, सबको पता है. सिल्क वॉर्म से सिल्क का कपड़े को धीरे धीरे बनाया जाता है एंड इट इज टेकन टू एन इंडस्ट्री. And how in most of the part of mostly in Bengal you have seen women wear cotton sarees also. That is in Bengali it's known as tat, and in Hindi we call it tantuj. The tat is also made from a wooden machine which is still being used. उसमें कोई modernization नहीं हुआ है, कोई भी नए गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है. वो पुराने तरीके से ही उसको वुडन मशीन से तात की साड़ी यानी कि कॉटन से बनाया जाता है. तो उस टाइम पे मैन्युफैक्चरिंग वर्क बहुत हो रहा था. एक और काम जहाँ की सिल्क और कॉटन के टेक्सटाइल्स थे. ओके, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन वर्क्स एक्सेट्रा. हाँ, प्रेशियस स्टोन्स एंड मेटल वर्क ऑल्सो. मेटल का भी बहुत सारा वर्क हमारे इंडिया में होता है. बहुत सारे चीज़ें, फर्नीचर से लेके यू कैन से थिंग्स विच आर यूज टुडे इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ऑल्सो मेटल. लाइक दिस इज द फोन, metal is being used here. This part is metal. Okay, now one more thing is says precious stones. In India, women are traditionally also not fond of गहने पहनने का. हम सबको शौक है. एंड द प्रेशियस स्टोन्स, डायमंड, हीरा, द डायमंड का भी आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है फ्रॉम भोपाल में एक फॉरेस्ट रिजर्व है, एक जंगल है जहाँ पे पूरा डायमंड का माइनिंग किया जाता है. तो प्रेशियस स्टोन्स को जब से माइनिंग करने से नहीं होगा, तब जो डायमंड का जो बड़ा स्टोन निकल के बाहर आता है, जो पत्थर होता है प्रेशियस, तो सुंदर स्टोन होता है उसका, उसमें से कार्विंग यानी कि कारीगरी की जाती है. क्राफ्ट्समैन जो है उस पर सुंदर तरीके से वर्क करते हैं टू टर्न इनटू रिंग, नेकलेसेस, पेंडेंट्स, लॉकेट्स, इयररिंग्स, ओके, ब्रेसलेट्स. इट इज यूज्ड इन दैट वे. नाउ नेक्स्ट, these
products enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used. हाँ, हमारे इंडिया में जितना भी रॉ मटेरियल्स है, चाहे आप इधर भी देख लीजिए, सिल्क, कॉटन, स्टोन्स, मेटल्स, each and every has fine quality. The quality is very good. Okay, because it is produced over here. हमारे देश में ही produced होता है. Worldwide market based on the reputation of the fine quality of materials used and the high standards of craftsmanship seen in the imports from India. High quality of craftsmanship होता है. Okay. So अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, जो रॉ मटेरियल्स है जितना भी हमारा इंडिया से, वो ब्रिटिशर्स अपने खुद के देश में ले जाते थे. ब्रिटिशर्स टुक टू देयर ओन कंट्री एंड उसके बाद क्या करते थे, टुक टू देयर ओन कंट्री एंड प्लेस्ड इट टुवर्ड्स मॉडर्न इंडस्ट्रीज. वो हमारे देश में बिल्कुल भी किसी भी तरीके से कोई भी रॉ मटेरियल नहीं छोड़ रहे थे, और अपना जितना भी हमारा इकोनॉमी है, हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा. दे ओनली थॉट अबाउट देयर ओन. यहाँ पे रूल्स कर रहे थे, बट उनसे पहले उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो था वो अपने लिए जितना भी रॉ मटेरियल है अपने देश में जाने के लिए वो कर रहे थे. सो एज यू ऑल नो that you are studying from book, so right now due to some problem, मेरे पास बुक नहीं है, but I am using your NCERT online book. Okay, so जो भी चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है बुक में, so I am also teaching you that from that book. Okay, so we study that introduction I am reading here. The primary objective of this book, Indian Economic Development, is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development and as it's today in the aftermath of independence. जितना भी मैंने आपको अभी समझाया है, that only I am you are studying which you are, जितना भी आप लोग पढ़ चुके हो उसको ही मैं अभी रीडिंग कर रही हूँ. And its development as it's all today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you know in the present state and future prospects. आपको पता है कि present state में अभी आपकी इंडियन इकोनॉमी कैसी है, फ्यूचर में कैसी होने वाली है according to the present situation. But you should also know about the past. Past में आपका इकोनॉमी कैसा था, that too before independence and before during the time of the British rule. So let us first look at the state in the India's economy prior to the country's independence and form of idea of various consideration that shape India's post-independent development strategy. तो जब जो मैंने आपको अभी बताया, the structure of India's present day economy is not just of current making as it has roots stepped in history, particularly in the period when India was under British rule, यानी कि before 15th August 1947. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. And understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 7.5 decades. जितना भी इससे पहले मैंने आपको explain किया, whatever I have explained before this my reading, that this till 7.5 decades I have explained to you. जो हमारा जितना भी मैंने आपको explain किया है वो आपका हो चुका है यहाँ पे.